Hello and good evening. Hope you can all see and hear me. Class is in a different format. I'll just explain in 1 minute why. Just let me know first if you can all see and hear me. Not working from home. I'm in the office only. I'll just tell you why this is looking different. You can just tell me if you can see and hear me properly first. अरे अभी बताता हूँ क्यों है न्यू फॉर्मेट. Can you just hold on for all right. So I will just do the notes. Give me a yeah. Now, so the thing is, let me just come to where we are right now. I have a couple of announcements for you today. Hope you can all see the screen also. I have a couple of announcements for you today. Now, I'm just, saying a couple of things. Dekho, in this course so far, yeah, there might be a problem with the mic that happens sometimes. Is it very unbearable? You can tell me. If it's absolutely unbearable, then it's okay. There is a mic issue. There is no problem with my voice. There is no issue with my voice. This is just a mic problem. Is it absolutely unbearable or can you hear me? Okay. So we just have to make a couple of announcements. Now in this course, so far, the things that are left, let's talk of that. What are we left with? So we are left with, I'm writing here, we are left with banking as a whole, and this will take out 2 classes. We are left with capital markets as a whole. This will take about 2 classes. And we are left with fiscal policy, broadly speaking, and this will also take 2 classes. What we are also left majorly is with the Indian economy. If I speak of Indian economy, there are 3 sectors of the economy that we have to cover. In this, we are left with 1, we are left with agriculture, which is a major topic. Okay, we are left with 2, services sector and industrial sector. Okay, now as we consider the services and industrial sector, this is not a relatively big topic. This is a, I would say, small topic. This is a fairly big topic. Okay, fairly big topic. Now, the thing is that right now, as I am right now, अगर मैं अभी की बात करूं, right now I have a fair amount of fever right now, right? And since there is a fair amount of fever right now, it's difficult for me to take the class at this moment. Right? It's difficult for me to teach you at this moment because my energy will also be low. In the morning, my fever was 101. It's still there. So I don't want to take a class while I am in a low energy state and I am not feeling well because I will not be able to deliver properly. The other thing here is, importantly, that I also don't want your time to get wasted. I don't want कि आपका time waste हो, right? So I am trying to find a solution where I'm just checking सब लोग voice break कह रहे हैं. I'm just checking if it's absolutely unbearable, right? So I don't want कि आपका भी time waste हो and I don't want कि मैं भी इस state में class लूँ जब I'm not able to contribute to your learning. ठीक है? तो अब what I have thought of this is, I'll tell you very clearly. What I've thought right now is that we will do agriculture first. Okay? We'll do agriculture first. This is not a class. I know the voice is not proper. The format is also different. Mic issue is also there.
है ना, is just hear this out, right? I'll just write in chat also. Okay, now the thing is, let's do agriculture first. That's what we're going to do. I am not feeling well. So as far as agriculture is concerned, agriculture is divided into prelims and means. This is we have to cover both of these. हमें prelims भी करना है और means भी करना है. अब as far as prelims agriculture is concerned, if you look at the question, and I will show you this. If you look at the question, you will see that prelims में agriculture में most of the questions are coming from current affairs, right? But to understand this current affairs, we need to have a background knowledge of agriculture. हमें पूरा background clear होना चाहिए, तभी we can study these current affairs. When are we going to study current affairs? We are going to study current affairs in the month of March. After this, in the release of the economic survey and the budget, right? Now, as far as the means is concerned, here in agriculture, we need to get a basic understanding of the agriculture system of India. इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, जैसे कि वाटर रिफॉर्म्स, जैसे कि सीड्स मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमें मेंस के लिए पढ़नी होती हैं. वंस वी अंडरस्टैंड दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन हियर, देन वी कैन रीड करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं, एग्रीकल्चर बेसिकली इन प्रीलिम्स विल कम मैक्सिमम 1 to 2 क्वेश्चन. ठीक है, इतना ही एवरेज रहता है. वन किसी एक ईयर में बहुत ज्यादा आ गया तो अलग बात है, बट 1 to 2 क्वेश्चंस इज द एवरेज. ओके, मीन्स की अगर मैं बात करूं तो मीन्स में जैसे मैं आपको दिखा चुका हूं 4 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड. तो दिस इज 50 मार्क्स इन GS3. तो इट इज, अगर मैं मीन्स में बात करूं तो एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी इन द मीन्स आर बोथ 50 मार्क्स ईच. तो दे आर बोथ इक्वली रेलेवेंट एज फार एज द मीन्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न. तो अगर आप एग्रीकल्चर को एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करो, इन द मेंस इट हैज अ ह्यूज वेटेज. इन द प्रीलिम्स इट्स स्टिल देयर, बट नॉट दैट ह्यूज ऑफ वेटेज. ओके, this is the story of agriculture in both prelims and mains. Okay, now what I want you to consider is, we will start reading agriculture from the main perspective. ठीक है, हमें ये चीज खत्म करनी है ताकि हम एग्रीकल्चर के सारे बेसिक्स आते हों, ताकि जब हमें करंट अफेयर्स दिखे भी, इट इज नॉट सच अ बिग डील कि यार एकदम से क्या होगा. इट विल बी लाइक कि ठीक है यार हमें आता है, एंड करंट अफेयर्स विल नॉट टेक सच अ बिग टाइम, राइट? So far, whatever I have told you, is it clear? Have you heard it and understood it? Please write yes in the chat. So far, whatever I have told you. For those who have not understood, I will just repeat once for logic. Agriculture is something that needs to be covered in the format of basics first. Basics are inherently basically mains format. Then we need to cover current affairs. Current affairs get asked in prelim. This we are going to cover in the month of March. This we are going to cover now. ठीक है, ताकि हमारा, देखो, दिस कोर्स, दिस इकोनॉमी कोर्स was meant as what? It was meant as a comprehensive course of both economy and agriculture, both prelims and mains, right? अभी तक आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं है कि इकोनॉमी में आई हैव जस्ट बिन फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स. आई हैव बिन फोकसिंग ऑन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. मींस के हमने बहुत क्वेश्चंस देखे. वी हैव नॉट लेफ्ट इट अपार्ट. हमने ये नहीं सोचा कि मीन्स को हम दूर छोड़ दें. सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी हम ये करेंगे, राइट? नाउ बेसिकली माय ऑब्जेक्टिव हियर विद यू इज कि प्रीलिम्स, मेंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर आपका कुछ भी ना छूटे और ना ही आपके करंट अफेयर्स छूटे. करंट अफेयर्स की बात तो हम कई बार कर चुके हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन मार्च. नाउ द पॉइंट इज, इकोनॉमी में आई थिंक इट विल टेक 6 more lectures टू फिनिश इकोनॉमी विद यू कंप्लीटली. ठीक है, पूरा इकोनॉमी आपके साथ खत्म करने के लिए इट विल टेक मी मे बी 6 more lectures. But since I am not well right now, I don't want to take them right now. I won't be able to take them right now. ठीक है, मैं उस लेवल का लेक्चर डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जिस लेवल का मैं चाहता हूँ. ठीक है, अब इसीलिए
व्हाट आई हैव डन इज एग्रीकल्चर के जो भी मेरे MMP प्लस के मेंस लेक्चर्स थे, वट एवर लेक्चर्स ऑफ MMP प्लस of means are there of agriculture, I have already uploaded them. I have uploaded one lecture right now. मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहता हूँ एक ही बार में सारे लेक्चर्स देखे. आई एम अपलोडिंग वन बाय वन एज सून एज आई फील बेटर. मे बी यूजुअली दिस हैपन्स टू मी, जब मेरा फीवर होता है 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, राइट. एज सून एज आई फील बेटर वील गेट बैक टू द नॉर्मल क्लास. अज्यूम मे बी 2 or 3 days. ओके, बट तब तक आपका टाइम वेस्ट ना हो. कल भी मैं आपके साथ क्लास नहीं ले पाया इसी रीजन से, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दीज लेक्चर्स विद यू. नाउ इन लेक्चर्स में क्या है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि जाके सीधा देख लो इन लेक्चर्स, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग गो एंड जस्ट वॉच देम डायरेक्टली. लेट मी टेल यू व्हाट दीज लेक्चर्स कंटेन, ताकि आप इनको प्रॉपर्ली देख पाओ. लेट्स टॉक ऑफ दैट नाउ. ओके, अब इनमें क्या क्या है, व्हाट इज देयर इन दीज लेक्चर्स. इन लेक्चर्स में क्या है, देखो. एग्रीकल्चर जब हम पढ़ते हैं उसके लिए एक फॉर्मेट है. देयर इज अ फॉर्मेट इन विच एग्रीकल्चर हैज टू बी स्टडीड सो दैट वी नो दैट एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज सॉर्टेड आउट. ठीक है, अब क्या है वो बेसिकली, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फॉर्मेट. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर में जो भी इनपुट्स जाते हैं. व्हाट वर इनपुट्स आर पुट. इनपुट्स क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चर में. लैंड होता है, वाटर होता है, right. There are seeds that a farmer uses as input. There are fertilizers, there are pesticides, there can be technology also, there can be credit also, insurance also. तो सबसे पहले हम इनपुट स्टेज पढ़ते हैं ऑफ एग्रीकल्चर. इनपुट्स में क्या क्या है. देन वी मूव ऑन टू द प्रोडक्शन स्टेज. एग्रीकल्चर की अगर हम प्रोडक्शन देखें तो इट्स नॉट मियरली क्रॉप्स. एक है ये लाइफ स्टॉक भी हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकती है, एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो सकती है, सेरिकल्चर भी हो सकता है, राइट. समबडी सेटिंग यहाँ पर लेबर है, बिल्कुल लेबर हो सकता है. लेबर तो फार्मर खुद है. लेट्स टॉक ऑफ मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन भी हो सकती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन हैव एट द इनपुट स्टेज. देन देयर आर वेरियस थिंग्स वी कैन हैव एट द प्रोडक्शन स्टेज. देन देयर इज द पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज. व्हाट इज पोस्ट प्रोडक्शन, क्या हो सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में, ये एक बार सोचे देखो. व्हाट ऑल कैन हैपन एट प्रोडक्शन स्टेज. पहले होगा जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज विल बी देयर. आपने प्रोड्यूस कर दिया, स्टोरेज होगा. देन ट्रांसपोर्ट होगा. देन मार्केटिंग होगी इसकी. अब मार्केट्स में ये दुनिया में कहाँ जा सकता है. ईदर इट कैन गो टू द डोमेस्टिक मार्केट और इट कैन गो टू डोमेस्टिक मार्केट के अलावा ये कहाँ जा सकता है. इट कैन गो टू एक्सपोर्ट मार्केट, और एक्सपोर्ट मार्केट के अलावा कहाँ जा सकता है, ये जा सकता है फूड प्रोसेसिंग में. ठीक है. अब अगर आपको, मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि मेंस का सिलेबस एक बार जरूर खुद से पढ़ना. अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो यही हमारा एग्जैक्ट सिलेबस है. और अगर हम इस ऑर्डर में एग्रीकल्चर को स्टडी करेंगे तो बहुत लॉजिकल ऑर्डर रहेगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू विद यू. ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विद लैंड. पहला इनपुट इन एग्रीकल्चर इज लैंड. अब लैंड में ही देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स. तो लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक कवर हो जाएगा. फिर आएगा वाटर. वाटर में ही सिलेबस में एक टॉपिक है माइक्रो इरिगेशन, वहां पर कवर हो जाएगा. सीड्स. सीड्स में ही सिलेबस में एक टॉपिक है विच इज जीएम क्रॉप्स. जीएम क्रॉप्स वहां कवर हो जाएगा. फिर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड से एक रिलेटेड टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, वो वहां कवर हो जाएगा. देन देयर इज क्रेडिट एंड इंश्योरेंस. यहाँ पर गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि अब आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस. क्रेडिट स्कीम्स बाय गवर्नमेंट लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. देन देयर इज लेबर एंड मैकेनाइजेशन, तो ये यहाँ पर कवर हो जाएगा, राइट. देन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी में सिलेबस का ही एक पार्ट है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, यहाँ पर कवर हो जाएगा. फिर हम प्रोडक्शन स्टेज आएंगे तो क्रॉप्स कवर होंगे. तो क्रॉप में भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स सिलेबस का एक पॉइंट है. मीन्स के सिलेबस को अगर आप देखो तो ये यहाँ पर कवर होगा. देन देर आर लाइफ स्टॉक.
लाइफ स्टॉक में एनिमल रियरिंग सिलेबस का एक पॉइंट है, तो ये यहाँ पर कब होगा. एग्रोफॉरेस्ट्री एंड सेरिकल्चर कैन ब्रॉडली बी ऑल्सो पुट इनटू द आइडिया ऑफ फार्मर्स इनकम्स इन इंडिया. कैसे फार्मर्स की इनकम बढ़ाई जा सकती है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मेंस में आते हैं, ये यहाँ कवर होगा. देन फाइनली विल कम टू पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज. पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में पहले स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, इस पे अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. फिर डोमेस्टिक मार्केटिंग की बात करेंगे. मार्केटिंग 2-3 जगह पे होती है. जहां पर मैं डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करता हूँ, आई एम ऑटोमेटिकली गोइंग टू लिंक इट टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. ये एक हमारा सिस्टम है राशन कार्ड्स का, यहाँ पे फिट होगा, राइट. फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, अगर मुझे अब्रॉड भेजना है तो एक्सपोर्ट कैसे करना है. और फिर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये अपने आप में एक सिलेबस का पॉइंट है. तो अगर हम इस फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो नथिंग ऑफ एग्रीकल्चर बी लेफ्ट. एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अग्री कि आपको एक पूरा होलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चर सिस्टम, राइट. तो फ्रॉम इनपुट टू प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन टू फूड प्रोसेसिंग, सब कुछ हमारा इसमें कवर हो जाएगा. एंड इट विल बी डन इन अ लॉजिक सीक्वेंस, ऊपर नीचे नहीं होगा. एंड दिस इसके बियॉन्ड आपको प्रीलिम्स में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जो इस तरह की बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद हम पढ़ेंगे, राइट. So at this stage, what I expect from you is that I will be uploading lectures day by day. I am assume करते हुए मैं आपको ये मान रहा हूँ कि मैं assume ये कर रहा हूँ कि आप I will be okay in 2 to 3 days. तो आप 2 से 3 लेक्चर अभी देखो, राइट. एंड दिस विल कवर एवरीथिंग, राइट. देखो सेम लेक्चर दोबारा पढ़ के कोई पॉइंट नहीं है, राइट. अरे दीज आर लेक्चर्स ऑफ एमएमपी प्लस ओनली, जो मैं आपको दे रहा हूँ एमएमपी प्लस के लेक्चर्स हैं. बंदा तो मैं ही हूँ ना, कोर्स का नाम अच्छी कह लो. इफ आई एम द पर्सन हु इज टीचिंग, इज द सेम थिंग ना. एमएमपी प्लस कह लो, उसको फाउंडेशन कह लो, फाउंडेशन मॉड्यूल कह लो, इकोनॉमी मॉड्यूल कह लो, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मेरी तो इंटेलेक्ट है, राइट. ठीक है. तो दिस इज द आइडिया. इनपुट्स, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, आप इसको कवर करते हैं, ठीक है. नाउ द पॉइंट इज, हमने छोड़ा था, वी हैव लेफ्ट इट एट द पॉइंट ऑफ बैंकिंग. आइडली हमें आज बैंकिंग करना था, ठीक है. आइडली वी हैड टू कवर बैंकिंग, ठीक है. एज द मोमेंट आई फील बेटर, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम बैंकिंग ओनली. अब आई एम अज्यूमिंग 3 days. 1 day is today, 1 day is tomorrow, 1 day day after. आई एम अज्यूमिंग इतने दिन के बाद आई विल बी बैक. बेसिकली अगर आज ट्यूजडे है तो फ्राइडे तक तो आई एम श्योर आई विल फील बेटर. तो फ्राइडे इफ आई एम एबल टू टेक अ क्लास, we will continue from banking, and plus we will do a doubt session on whatever you have watched so far. जो आपने 3 लेक्चर्स देखे होंगे एग्रीकल्चर के, उसमें अगर आपका कोई डाउट हुआ तो वो भी हम कवर कर लेंगे फ्राइडे की क्लास में, राइट. बट आप अपना टाइम वेस्ट मत करो इन दीज 3 days. इफ आई एम इल डज नॉट मीन दैट यू शुड रेस्ट, है ना. इफ आई एम इल, आई शुड रेस्ट, ठीक है. हाँ हाँ, तो यहीं पे जो टॉपिक्स बचे हैं, स्टेरिलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहीं से कंटिन्यू करें हम, राइट. आई एम इल, यू शुड नॉट रेस्ट ना, राइट. अब एग्रीकल्चर कितने लेक्चर्स में कवर होता है? एग्रीकल्चर एक्चुअली 6 लेक्चर्स में कवर होता है, ठीक है. मैं आपको 3 दे रहा हूं अभी. आई एम अज्यूमिंग टोटल आर 6, जिसमें मेंस का सब कवर हो जाता है, राइट. तो मेंस का सब कवर हो जाता है. इफ यू हैव ऑलरेडी वॉच दिस इन एमपी प्लस, यू डोंट नीड टू वॉच, जस्ट रिवाइज इट. अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो रिवाइज इट, राइट. बट इसके बियॉन्ड यू विल नॉट नीड दिस. जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की बात है पवार, मैंने बोला ना दैट वी विल टू कवर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ये सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बचा है ना यहाँ पे, ये इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज ही तो कवर होगा, राइट. तो टिल आई एम अनवेल, जस्ट कवर दीज 3 lectures, right. I have uploaded the entire PDF of agriculture. I have uploaded the notes of agriculture also, right. आपके it will be uploaded in your it will be uploaded in your uh, it will be uploaded in your portal only. आपके पोर्टल में कवर होगा. I will give you all 6, आकांक्षा, बट देखो आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू. मुझे आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बाकी 3 भी दे दूंगा. आई डोंट नो यार भाई, होल्ड ऑन, आई विल नॉट लुक एट द चैट, ठीक है. अब आप मेरी बात सुनो. आई विल गिव यू ऑल ऑफ दीज 6. आई जस्ट डोंट वांट टू
अपलोड इट एट वन टाइम ताकि आप ओवरबर्डन ना हो। अगले 3 दिन का काम मैं आपको दे रहा हूँ जब तक मैं ठीक हो जाऊँ। अगले 3 दिन बाद आई मीट यू। मेरा काम है ये सब कुछ खबर करना, ठीक है। आई एम जस्ट नॉट गिविंग इट टू यू सो दैट यू डोंट गेट ओवरबर्डन्ड, राइट। यू डू द 3 एट द मोमेंट। आप ये 3 अच्छे से पढ़ो। अगर मैं आपको सारे दे दूंगा तो मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। आप 1.5x पे देखोगे, मैं उसी पे आ रहा था अभी। आप क्या करोगे, आप 1.5x पे देखोगे, और जब आप 1.5x पे देखोगे तब आप क्या करोगे, आप जल्दी जल्दी स्किप कर दोगे और फिर आप मुझे बोलोगे कि वो बहुत तेज लेक्चर्स थे और आपको समझ नहीं आया। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली ये एडवाइस दे रहा हूँ कि इसको 1.5x पे नहीं देखना, ठीक है। बिल्कुल ही 1.5x पे नहीं देखना। उसमें भी उन लेक्चर्स में भी बहुत जगह ऐसा होगा कि दे विल बी थिंग्स, ऐसे टाइमर चल रहा है, यू आर आस्क्ड टू थिंक। व्हेन यू आर आस्क्ड टू थिंक, एक्चुअली थिंक। उस टाइमर को स्किप मत करना, ठीक है। ट्रीट इट लाइक अ लाइव लेक्चर। आई एम नॉट एबल टू टेक इट एज अ लाइव लेक्चर। आई एम नॉट एबल टू टेक इट एज अ लाइव लेक्चर डजंट मीन यू शुड नॉट स्टडी लाइक अ लाइव लेक्चर ना। आप तो उस लाइव लेक्चर की तरह ही पढ़ो। मैं नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज मेरी तबियत खराब है, doesn't give reason for you to rest, right? I am trying to accommodate, आपका टाइम वेस्ट ना हो, समझी बात। अब हाउ टू वॉच दीज लेक्चर्स इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको जरा एक बार कंसिडर करते हैं कि कैसे इन लेक्चर को आपने देखना है, राइट। इन लेक्चर्स के साथ देर आर टू थिंग्स। वन इज देर आर ह्यूज नोट्स जो कि प्रिंटेड हैं, बेसिकली प्रिंट नोट्स हैं, वो मैं अपलोड करा दिए हैं, और साथ में देर आर 1 पेजेस। अब ध्यान से सुनना, द नेक्स्ट 10 मिनट्स विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 पेजर नोट्स खोलने हैं। 1 पेजर्स खोल के रखना, वो अभी अपलोड करा रहा हूँ, ये खोल के रखना और लेक्चर देखना। दीज 1 पेजर्स विल बिकम योर फाइनल नोट्स। इन्हीं के साथ आप मेंस देने जाओगे, कि यही आपके फाइनल नोट्स हैं, ओके। इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है आप। ये जो प्रिंट नोट्स हैं ये किस लिए हैं, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आपको मेरे पढ़ाने से आपको कुछ समझ नहीं आया अगर, ठीक है, तो आप कैन यूज दिस फॉर रेफरेंस। आप इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आई वांट कि आप ये और ये करके जाओ ताकि आपको सब कुछ याद रहे और आपके पास मेंस के लिए फाइनली एक सेट ऑफ 1 पेजर नोट्स हों, जिससे आप मेंस का पेपर आराम से दे सको। मीन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, पता नहीं होता कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसीलिए 1 पेजर्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ये एक ही बार में एक जगह पर सारा काम हो सके। द आइडिया इज यू टेक द 1 पेजर्स एंड यू वॉच द लेक्चर्स, यू कैन रीड दीज वंस। एक बार इनको रीड कर सकते हो आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, बट आपको कुछ खास नया इसमें मिलेगा नहीं। अल्टीमेटली 1 पेजर्स में थोड़ी बहुत एडिशन आपको करनी पड़ेगी, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप लेक्चर्स देखोगे। यू हैव टू राइट अ लिटिल बिट, ठीक है, और साथ में लेक्चर देखो। ये काम है आपका अगले 3 दिन के लिए, ठीक है। दिस इज वॉट आई एम प्लानिंग। आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट आई विल बी फाइन ऑन फ्राइडे। आई एम ऑलमोस्ट श्योर दैट बाय फ्राइडे आई वुड हैव रिकवर्ड, राइट। तो फ्राइडे को हम फिर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। अब ये भी ध्यान से सुन लो व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉरवर्ड, राइट। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉरवर्ड इज, आज ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे और थर्सडे। इस दिन यू विल वॉच एग्रीकल्चर लेक्चर 1, 2 एंड 3। मैं आज की क्लास जल्दी खत्म करूंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी लेक्चर देखने पर जा सको। लेक्चर 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। फ्राइडे को वी विल कंटिन्यू बैक। फ्राइडे को हम मिलेंगे। फ्राइडे को वी विल डू, फ्राइडे को व्हाट वी विल डू इज वी विल डू बैंकिंग जो हमारा रह गया था। सैटरडे को ऑल्सो वी विल टेक अ क्लास एंड डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैंकिंग, ठीक है। फिर हमारा बैंकिंग खत्म हो जाएगा। देन आई विल वॉन्ट कि जो एग्रीकल्चर के रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो भी आप देख लो, 4, 5 एंड 6। दैट वे योर एग्रीकल्चर विल ऑल्सो बी फिनिश्ड। देन वी विल बी लेफ्ट विद वेरी फ्यू टॉपिक्स विल बी लेफ्ट, जो मैं ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, जैसे कि कैपिटल मार्केट, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज।
ये टॉपिक्स रह जाएंगे. दिस वी विल कवर इन जनवरी फर्स्ट वीक एंड आई थिंक बाय 5th जनवरी वी विल बी डन विद एवरीथिंग. 5th जनवरी को हमारा प्रीलिम्स, मेंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सब खत्म हो चुका होगा एक्सेप्ट फॉर दिस ईयर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लिखना भूल गया मैं यहाँ पे. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सॉरी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑल्सो. तो कैपिटल मार्केट्स, फिस्कल पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, राइट. जस्ट फॉरगॉट टू राइट इट, नॉट डजंट मीन वोंट कवर, मैंने ही बताया आपको, जस्ट फॉरगॉट टू राइट इट. ये हम सब कुछ 5th जनवरी तक कवर कर लेंगे. ठीक है. नाउ वंस वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस टिल 5th जनवरी, आप एग्रीकल्चर फॉर मीन्स, एग्रीकल्चर for prelims is merely current affairs. Economy for prelims, economy for mains is now done. The only thing that will be left is current affairs of this year, which we will do in March. वो भी हम मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हेन आई एम एबल टू प्रिपेयर द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. ये बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो पास होगा बजट. उसके बाद बजट इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड करंट अफेयर्स और बाकी जो करंट अफेयर्स हैं ये हम मार्च में कर लेंगे. Then you are sorted for prelims, you are sorted for mains, prelims, means, agriculture, सब कुछ आपका covered है, right? अब I hope all of this message now clear to you. अब समझ आ गया है कि ये मैसेज क्या है. मैं एक ही बार में आपको 6 लेक्चर्स क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इस लेक्चर पे मैं आपके साथ डाउट सेशन लेना चाहता हूँ. अगर मैं आपको 6 लेक्चर्स कहूँ कि आप देख लो और मैं आपको उसमें हेल्प ना करूँ तो क्या फ़ायदा. तो इसीलिए मैं आपको एक बारी में 3 लेक्चर दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इस दिन एक डाउट सेशन रखते हैं ताकि आपको जो भी समझ नहीं आया वो हम कर सकें. फिर 3 लेक्चर्स और देखना, फिर एक और डाउट सेशन रखेंगे ताकि जो आपको समझ नहीं आया वो हम देख सकें, है ना. वरुण चौधरी कह रहे हैं प्रीलिम्स रिवीजन स्टार्ट इन जनवरी. प्रीलिम्स रिवीजन किस कोर्स से स्टार्ट हो रहा है वरुण? जनवरी में कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और किसने पढ़ाना है? वो इकोनॉमिक्स से हो रहा है और मैंने ही पढ़ना है. वो आप पहले पढ़ चुके हो. अब कोई someone is asking 2026 current affairs. Can I teach you 2026 current affairs before 2026? बताओ. Can I teach you 2026 current affairs before 2026? No. तो इसके करंट अफेयर्स हम 2026 में पढ़ेंगे जब उस साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, है ना. हाँ, इसी फॉर्मेट में चलेगा. 1 पेजेस मैं अभी अपलोड करा देता हूँ. बट इज द मैसेज क्लियर? इज द मैसेज क्लियर? समझ आ गई ना बात? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. बेसिकली ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और 5th जनवरी तक हम सब कुछ क्लियर कर लें. ठीक है. तो आई विल नाउ सी यू ऑन फ्राइडे. फ्राइडे को तो मैं आता हूँ, ये 3 लेक्चर आप पढ़ के आओ. इसका पहले एक डाउट सेशन लेते हैं अबाउट 1 आवर का. फिर ये करते हैं, बैंकिंग ख़त्म करते हैं. फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये लेक्चर देखना. फिर थर्सडे को मिलते हैं, इसका डाउट सेशन लेते हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर यू. और वो लेक्चर्स इतने फ्लो और इतने ऑर्डर में पढ़ाए हैं. बस एक रिक्वेस्ट है, वन मेजर रिक्वेस्ट आई हैव टू मेक. प्लीज उनको 1.5x में मत देखना जस्ट बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड. ठीक है. प्लीज उसे 1.5x में मत देखना. ठीक है. वीडियो हैव बीन अपलोडेड. ये जो नोट्स हैं मैं 1 पेजेस ही करा देता हूँ. प्लीज 1.5x में मत देखना बिकॉज आपको नहीं समझ आएगा. आराम से देखना, टेक योर टाइम. जब उसमें मैं बोलूँ उस रिकॉर्डेड लेक्चर में सोचना है तो सोचना. अगर एक्चुअली करोगे तो फायदा होगा. अगर जल्दी जल्दी करोगे लगेगा कि कंप्लीट हो गया. आपने लाइफ में बहुत लेक्चर्स 1.5 पे देखे होंगे. डू दे एक्चुअली हेल्प? दे डोंट, राइट. तो वो मत करना. वॉच इन टाइम. ठीक है. आई होप मैसेज इज क्लियर. आई मोस्ट लोगों को समझ आ गया है चैट में, सो आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. ये लेक्चर्स एग्रीकल्चर के मीन्स के लेक्चर्स हैं.
जिससे आपका बेसिक्स क्लियर होगा। अगर आप पहले देख चुके हो इनको सम रीजन टेलीग्राम पे या कैसे भी, या आप एमएमबी प्लस में इनको पहले देख चुके हो, तब आप 1.5x पे देख सकते हो। बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट दोबारा देखना, बिकॉज मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, राइट। स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप दोबारा देखना। लेक्चर अपलोड है 1 पेजेस में, अभी अपलोड करा रहा हूँ, ठीक है। टेक योर टाइम, पॉज करके आराम आराम से देखना, ठीक है। अगर ऑलरेडी कर चुके हो तो 1.5x पे देख सकते हो, बट अदरवाइज टेक योर टाइम, ठीक है। 1 लेक्चर डेली, 1 लेक्चर डेली इज द टारगेट। तो आपके मैं टारगेट्स यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। आज ट्यूसडे है, वॉच लेक्चर 1 ऑफ एग्रीकल्चर। वेडनेसडे है, कल वॉच लेक्चर 2 ऑफ एग्रीकल्चर। थर्सडे है, वॉच लेक्चर 3 ऑफ एग्रीकल्चर। ये 3 काम आपको करने हैं। इसके साथ रीड द प्रिंटेड नोट्स 1, इनको एक बार बस रीड करना, और लेक्चर देखते देखते साथ लेके बैठना 1 पेजर्स। ये काम है। हम मिलते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम बैंकिंग, और इन 3 लेक्चर्स का हम ले लेंगे आपका एक डाउट सेशन, ताकि आपके जो भी डाउट्स एग्रीकल्चर के बचेंगे, वैसे वो बहुत स्लो पढ़ाया हुआ है, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी डाउट्स, बट स्टिल इफ देयर आर एनी डाउट्स तो मैं वो फ्राइडे को ले लूंगा, एंड हम बैंकिंग कर लेंगे फ्राइडे सैटरडे। फिर नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे वेंसडे आप देखोगे एग्रीकल्चर का लेक्चर 4 5 एंड 6। थर्सडे को मिलेंगे, उसका एक डाउट सेशन लेंगे, देन विल कंटिन्यू विद इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एंड नाउ सी यू ऑन फ्राइडे, राइट। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, बट नथिंग आई कैन डू। मैं अगर ऐसे क्लास लूंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा, ना आपका ना मेरा, right? If I take class like this, it's not going to have an advantage for you or me, right? All right. All right. So that I'm just going to take some rest, and I will see you now on Friday. Okay. बस फ्राइडे को बात करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड इवनिंग।